1925 Punjab. The small town of Sri Hargobindpur in Gurdaspur district witnessed the birth of a visionary, Raj Khosla, a man who would go on to redefine Indian cinema with his gripping storytelling, haunting melodies, and enigmatic thrillers. He arrived in Bombay with dreams of becoming a singer, with a voice that was distinctly similar to K.L. Sehgal. मधुर सुरों में सुनो झमेला एक था मजनू एक थी लैला। अगला गाना राज खोसला और साथियों की आवाज में प्रस्तुत है फिल्म आँखें से। रेल में दिया मोरा था नन होए रे, रेल में दिया मोरा था नन होए रे। In the early days of his career, he also appears on screen for short cameos in Jal as an Arab smuggler and in Bazi as a police superintendent. तुम ये कैसे कह सकते हो जबकि वो अपने आप को कातिल मान चुका है? Later in Solva Saal, we see him in his element as a director on a film set. Cut. No. Eventually, Raj Khosla found his true calling behind the camera. In an interview with Amin Sayani, he talks about how destiny led him to assist the legendary Gurudutt. राज खोसला साहब गाते भी खूब थे जी हाँ, और किसी जमाने में रेडियो सिलोन के एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रंग तरंग में वो हर हफ्ते आकर के.एल. सहगल के गीत गाया करते थे। तो फिर वो डायरेक्टर कैसे बने? सबसे बड़ी तकदीर मेरी यही थी कि मुझे गुरुदत्त मिले। वो एक खूबसूरत फनकार ही नहीं थे, उनके बहुत हसीन आदमी भी थे। उनकी बदौलत जो भी कुछ हूं मैं आज देवानंद और गुरुदत्त की बदौलत हूं, और उन्हीं से मैंने मेहनत सीखी। He began his career as a director with Milap in 1955. CID came next in 1956 and then Kala Pani in 1958. लेके पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। These set the stage for his lifelong love affair with suspense. Then came the era of mystery, the golden trilogy that sent chills down our spine. In Wo Kaun Thi, Khosla painted a ghostly dream with suspense and romance, a Hitchcockian thriller soaked in haunting melodies. I think through the 50s, 60s, 70s and 80s, Raj Khosla was one of the towering directors, one of the towering personalities of our industry. Mera Saya took mystery to new heights. Was she a loving wife or an imposter? Khosla played with shadows, music and deception like no other. And Anita, a tale of love, betrayal and a woman who vanished into thin air. He didn't stop there. With Mera Gaon Mera Desh in 1971, Raj Khosla laid the foundation for Indian dacoit films, blending Western-inspired action with rural Indian grit. Khosla's wide shots, dramatic standoffs, and unforgettable villain were iconic. गब्बर सिंह ने सिर्फ दो ही बातें सीखी हैं, एक मौके का फायदा उठाना और अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देना. Later going on to directly influence the visual and thematic language of films like Sholay. तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई. But Raj Khosla was more than just action and suspense. His storytelling was deeply rooted in exploring human relationships, weaving narratives that were both heartfelt and socially relevant.
दो रास्ते and मैं तुलसी तेरे आंगन की showed his mastery in family dramas that resonated with millions. हमारे गुरु बोलते थे राज खोसला साहब कि फिल्म मेकर जो होता है अपनी फिक्शनल स्टोरीज में नंगा हो जाता है, बिल्कुल जैसा वो होता है वो नजर आता है बिल्कुल. Raj Khosla was a storyteller, a visionary who gave us cinema that thrilled, moved, and mesmerized. His films weren't just stories, they were experiences. His melodies still echo, his mysteries still haunt, and his legacy, it lives on in every frame of Indian cinema. जब तक दिल में वलवला है तब तक जिंदगी है, जब तक मेहनत है तब तक तकदीर है. Thank you, Nikhil, for this quick and short journey in Sir's iconic history. Moving on to our performance for today evening, Dastane-e-Raj Khosla, a musical tribute to the legendary filmmaker celebrating the timeless melodies of his cinema. With live renditions by Rashmi Agarwal and storytelling by Kanupriya, the show weaves songs with rare anecdotes of his early days with Guru Dutt to his mastery across romance, thriller, and musicals. Introducing Rashmi Agarwal. Joining her will be Kanupriya Agarwal. Along with that, we have the musicians, Vikash on the keyboard, we have Satyam on the guitar, Sonu on dholak, and we have Ram Sharma on an octopad, and we have Satish Solanki on a percussion. A quick note on Rashmi Agarwal, an acclaimed Indian classical vocalist with over 30 plus years of experience specializing in Sufi, Ghazal, and folk. An ICCR empaneled, award-winning artist. She has performed globally and uniquely curated, scripted this show just for you all today. It's a first. Please, can we give her a round of applause? Joining her today, we have Kanupriya Agarwal, the storyteller, who moves effortlessly across Hindi, Urdu, English, and known for evocative performances at platforms like Jashn-e-Ekta. Rashmi ma'am, over to you. तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा. तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा. मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया. आप सभी को मेरा और मेरे साथी कलाकारों का नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आज हम सब एक ऐसे फिल्मकार को सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनका ये सेंटेनरी ईयर भी है. हिंदी सिनेमा के आसमान पर कई फिल्म डायरेक्टर्स सितारों की तरह चमके, जैसे गुरु दत्त, बिमल रॉय, राज कपूर. पर एक ऐसा नाम भी था जो शोर नहीं करता था. वो खामोशी से सुरों में कहानियाँ रचता था. उस सितारे का नाम था राज खोसला. आज हम उनकी लाइफ, उनकी लेगेसी और उनकी फिल्मों के संगीत, उनके यूनिक सॉन्ग पिक्चराइजेशन के बारे में बात करेंगे. इस म्यूज़िकल सफ़र में मेरी हमसफ़र हैं कनुप्रिया, जो राज साहब की ज़िंदगी से जुड़े, उनकी फिल्मों के गीतों से जुड़े किस्से और कहानियों के साथ इस सिलसिले को आगे लेकर चलेंगी. जब पर्दे पर साए नाचते थे, गीतों में कहानियां बसती थीं. एक फनकार था जिसने सिनेमा को सुरों की जुबान सिखाई. ख़वातीनो हज़रात, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर
जहां रोशनी और अंधेरे का खेल था, जहां हर गीत एक सवाल था और हर धुन एक जवाब। आज हम बात करेंगे राज खोसला साहब की, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने रोमांस को रूह दी, रहस्य को धड़कन और औरत के किरदार को जज्बाती मरकज। राज साहब का जन्म 31 मई 1925 को लुधियाना में हुआ था। उनका पहला इश्क संगीत था। वो गायक बनना चाहते थे और यही ख्वाब लेकर वो मुंबई आए। केएल सहगल के मुरीद थे और कुछ समय उनसे सीखा भी। अपने करियर की शुरुआत में कुछ समय उन्होंने मुंबई AIR में बतौर म्यूजिक स्टाफ काम भी किया। 2-3 फिल्मों में प्लेबैक भी दिया और उनमें से एक फिल्म थी भूल भुलैया। गीत था मधुर सुरों में सुनो झमेला। मधुर सुरों में सुनो झमेला, मधुर सुरों में सुनो झमेला, एक था मजनू एक थी लैला। मधुर सुरों में सुनो झमेला, मधुर सुरों में सुनो झमेला, एक था मजनू एक थी लैला। मिल मिल के दोनों ने ऐसा प्यार का नाटक खेला। पगड़ी बन गई डाक का थैला, पगड़ी बन गई डाक का थैला थैला। मधुर सुरों में सुनो झमेला, मधुर सुरों में सुनो झमेला, एक था मजनू एक थी लैला। पगड़ी के बाहर थी मखमल, अंदर थी खटमल की महफिल। एक खटमल ने आग लगा दी, काट के ऐसी ब्रेक लगा दी, रुक गया प्यार का ठेला ठेला ठेला। मधुर सुरों में सुनो झमेला, मधुर सुरों में सुनो झमेला, एक था मजनू एक थी लैला। बीच भंवर में छोड़ के नैया, आप तो छुप गए खटमल भैया। अंगलियां लाखों अपने, टूट गए सब प्यार के सपने, रह गया मजनू अकेला अकेला अकेला। मधुर सुरों में सुनो झमेला, मधुर सुरों में सुनो झमेला, एक था मजनू एक थी लैला, एक था मजनू एक थी लैला। शुक्रिया। तो जनाब, इस बीच राज खोसला की मुलाकात कॉफ़ी हाउस में देवानंद से हुई, जो गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। देवानंद एक जौहरी की तरह थे। उन्होंने राज खोसला का हुनर देखा और अपनी फिल्म बाजी में उन्हें गुरुदत्त को असिस्ट करने का मौका दिया। ये राज खोसला की जिंदगी का लैंडमार्क था।
गुरुदत्त ने भी उनके टैलेंट पर इतना भरोसा दिखाया कि अपनी प्रोडक्शन की नई फिल्म सीआईडी, जो कि एक क्राइम थ्रिलर थी, उसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी उनको सौंप दी। इस फिल्म में एक गीत था, जाता कहाँ है दीवाने। इस गीत में मजरूह सुल्तानपुरी ने गाने के मीटर को पूरा करने के लिए एक मीनिंगलेस सा वर्ड फिफ्फी, इसका इस्तेमाल किया था। उस समय के महाराष्ट्र के सीएम श्री मोरारजी देसाई थे। उनको ये शब्द कुछ सजेस्टिव, कुछ वल्गर लगा और नतीजा ये हुआ कि इसको सेंसर कर दिया गया। केवल फिल्म के ऑडियो में इस गाने को जगह मिली, पर इस गीत को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिली तब जब इसे अनुष्का शर्मा पर फिल्म बॉम्बे वेलवेट में पिक्चराइज किया गया। चलिए सुनते हैं। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। फिफ्फी कुछ तेरे दिल में फिफ्फी, कुछ मेरे दिल में फिफ्फी, जमाना है बुरा। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। फिफ्फी कुछ तेरे दिल में फिफ्फी, कुछ मेरे दिल में फिफ्फी, जमाना है बुरा। फिफ्फी कुछ तेरे दिल में फिफ्फी, कुछ मेरे दिल में फिफ्फी, जमाना है बुरा। फिफ्फी कुछ तेरे दिल में फिफ्फी, कुछ मेरे दिल में फिफ्फी, जमाना है बुरा। हाजरीन, सीआईडी फिल्म में एक नई लड़की आई, नाम था वहीदा रहमान। राहत साहब को ये नाम कुछ लंबा लगा और उसे बदलने का प्रस्ताव रखा, पर वहीदा ने अपनी शर्तें साफ रख दी। उन्होंने कहा, नाम नहीं बदलूंगी, कपड़े मैं तय करूंगी और किरदार में सच्चाई चाहिए। उस दौर में ऐसी जुर्रत कम ही देखने को मिलती थी। खैर, गुरुदत्त के इंटरवेंशन से वहीदा की बात मान ली गई और शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन फिर एक गाने के दौरान राज और वहीदा में बहस छिड़ गई। हुआ ये कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया ने, जिनका भी रिसेंटली देहांत भी हो गया, उन्होंने एक लेसी ब्लाउज़ बिना लाइनिंग के डिज़ाइन किया था। वहीदा बोली कि मैं बिना लाइनिंग के ये नहीं पहनूंगी। राज खोसला थोड़े इम्पेशेंट हो गए, बोले, आप एक न्यू कमर हैं, ऐसा नहीं होता, डोंट मेक अ फस, इतना लंबा स्कर्ट तो है। पर वहीदा नहीं मानी। दोनों ही जुनूनी फनकार थे, अपने फन में माहिर। खैर, गुरुदत्त को खंडाला से बुलवाया गया, वहीदा की माँ को भी बुलवाया गया और जैसे तैसे गुरुदत्त ने बात बिगड़ने से बचा ली और वहीदा ने ब्लाउज पर एक दुपट्टा ओढ़कर सॉन्ग शूट किया। गीत था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना।
कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ न दीवाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कोई न जाने इरादे हैं किधर के, कोई न जाने इरादे हैं किधर के, मार न देना तीर नजर का किसी के जिगर पे, मार न देना तीर नजर का किसी के जिगर पे। नाजुक ये दिल है बचाना ओ बचाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तौबा जी तौबा निगाहों का मचलना, तौबा जी तौबा निगाहों का मचलना, देखभाल के ए दिल वालों पहलू बदलना, देखभाल के ए दिल वालों पहलू बदलना। काफिर अदा की अदा है मस्ताना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ न दीवाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। थैंक यू। हाजरीन, सीआईडी ने सिल्वर जुबली मनाई। ये राज खोसला की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। गुरुदत्त ने राज को फ़ोन करके अपने पास बुलाया और उनके हाथ में गाड़ी की चाबी रखी। चाबी थी नई ऑटोमेटिक कन्वर्टेबल कार की। राज साहब इमोशनल हो गए और फिर निकल पड़े बॉम्बे की सड़कों पर और देर तक गाड़ी चलाते रहे। ऐसा महसूस कर रहे थे मानो उड़ रहे हों। गुरु ने सारे पेपर्स राज के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। ये गिफ्ट नहीं, गुरु का आशीर्वाद था। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस,
कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस, बेकारों के हैं कई काम यहाँ। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, है दिल है मुश्किल जीना यहाँ। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। थैंक यू। हाजरीन, राज खोसला अपने एस्थेटिक सॉन्ग पिक्चराइजेशन के लिए जाने जाते हैं। गुरुदत्त की निगरानी में उन्होंने सीखा कि फ्रेम कैसे बनता है, शैडोज़ का, मिरर्स का, रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल कैसे होता है, धुंध में चेहरा फ्रेम करना, जज्बात को एक सिम्फनी की तरह गढ़ना, ये सारी स्किल्स उनके गीतों के पिक्चराइजेशन में झलकती हैं। उनकी एडिटिंग महज टेक्निक नहीं थी, वो पोएट्री थी। रात, बारिश, धुंध, सफ़ेद साड़ी, हर कट कैलकुलेटेड, हर फ्रेम पर्पसफुल। जब बाकी डायरेक्टर्स गीतों को एंटरटेनमेंट का जरिया समझते थे, राज खोसला ने उन्हें नैरेटिव का हिस्सा बना दिया। ऐसा ही उनकी फिल्म का एक गीत है जो फिल्म काला पानी का है, जो आज भी लोगों के दिलों पे छाया हुआ है और आज भी प्यार में रूठने मनाने पर ये गीत गुनगुनाया जाता है। चलिए सुनते हैं। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अजी समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तीनों हजरात, राज साहब अभी 30 के ऊपर हुए ही थे कि उनकी डेब्यू फिल्म मिलाप बतौर डायरेक्टर फ्लोर पर जाने वाली थी और उनकी माँ ने उनके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ ली। शायद उन्हें ये डर था कि फिल्मों की चकाचौंध वाली दुनिया में उनका बेटा कहीं बुरी संगत में न पड़ जाए। राज की शादी उषा चोपड़ा से 7 मार्च 1954 को हुई
और दूसरे ही दिन मिलाप की शूटिंग शुरू हो गई। और इसी के साथ एक मुसाफिर और एक हसीना जीवन के नए सफ़र पर चल पड़े। शायद ये गीत गुनगुनाते हुए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हुजूर आ पाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। कि बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। मुझे डर है मुझ में गुरूर न जाए, लगो झूमने में सुरूर न जाए, सुरूर न जाए। कहीं दिल न मेरा ये तारीफ सुनकर, कहीं दिल न मेरा ये तारीफ सुनकर तुम्हारा बने और मुझे भूल जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हाजरीन, इतनी जोर से नहीं पढ़ रही हैं, क्या बात है। शुक्रिया, शुक्रिया। हाजरीन, फिल्म बम्बई का बाबू से एक किस्सा सुनाती हूँ। हुआ यूं कि एक रोज़ देव साहब की शूटिंग खत्म होने पर होटल में देव साहब समेत क्रू के कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। शोर सुनकर फिल्म की हीरोइन सुचित्रा सेन ने कंप्लेन की और इसी के चलते राज साहब से
कुछ बहस हो गई। सुचित्रा ने फिल्म छोड़ देने की धमकी दी। राज साहब ने रोका नहीं और बॉडी डबल से शादी के सीन की शूटिंग शुरू कर दी। दरअसल उन्हें यकीन था कि सुचित्रा वापस आ जाएंगी, और हुआ भी यही। आधे गाने में सुचित्रा वापस आ गई और बोली, क्या ये बॉडी डबल मुझसे बेहतर एक्टिंग कर सकती है? खैर, राज मुस्कुराए। गाना सुचित्रा ने ही पूरा किया। चलिए सुनते हैं वो गीत। चल री सजनी अब क्या सोचे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते। चल री सजनी अब क्या सोचे, चल री सजनी अब क्या सोचे। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते। चल री सजनी अब क्या सोचे। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है। कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे। चल री सजनी अब क्या सोचे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते। चल री सजनी अब क्या सोचे, चल री सजनी अब क्या सोचे, चल री सजनी अब क्या सोचे। थैंक यू। हाजरीन, राज खोसला एक जीनियस फिल्म डायरेक्टर तो थे ही साथ उनको संगीत की भी अच्छी पकड़ थी। पर उनका ये ज्ञान ना कभी कभी संगीतकारों पर भारी पड़ जाता था। एक मुसाफिर एक हसीना के म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर भी म्यूज़िक जीनियस थे, और जैसा कि क्रिएटिव वर्क में अक्सर होता है, दो दिग्गज जब मिलते हैं तो उनके बीच फायरवर्क्स भी हो ही जाते हैं। तो राज साहब का उन्हें सजेशंस देना ओपी नैयर साहब को इंटरफेरेंस लगा, और उन्होंने प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी को से फिल्म छोड़ देने तक की बात कह दी। जैसे तैसे प्रोड्यूसर साहब ने बात संभाली और फिल्म का संगीत पूरा हुआ, और संगीत ऐसा धुरंधर बना कि बस धूम ही मचा दी। इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहें।
आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न कर ओ हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आते हैं क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आते हैं क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों? आप आते हैं क्यों? क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इजहार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न कर ओ हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी बातों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। थैंक यू। हाजरीन, फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से राज साहब और साधना के कोलैबोरेशन का दौर शुरू हुआ। 1960s और 70s राज खोसला के गोल्डन ईयर्स थे। इस दौर में उन्होंने एक के बाद एक कामयाब फिल्में दी और इसी दौर में आई द मिस्ट्री गर्ल ट्रायोलॉजी, जिसमें थी वो कौन थी, मेरा साया और अनीता। ये फिल्में रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर्स थीं। इन फिल्मों की हीरोइन रहस्यमयी थी, संवेदनशील थी, खूबसूरत थी, भावुक थी, पर कमज़ोर नहीं थी। इन तीनों फिल्मों की हीरोइन साधना ही थी, जिनके साथ राज साहब की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। तीनों फिल्मों में एक हिचकॉकियन ट्रेट थी। दर्शक मिस्ट्री में, सस्पेंस में ऐसे उलझ जाते थे कि फिल्म के अंत तक समझ नहीं पाते थे कि होने क्या वाला है। राज खोसला was the finest Hitchcockian director India had seen.
He was in fact a cinematic visionary. चलिए वो कौन थी से ये गाना सुने जो मेरा फेवरेट भी है, शोक नजर की बिजलियां। शोक नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, शोक नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर तू यूं ही मुस्कुराए जा, शोक नजर की बिजलियां। जाग उठी है आरज़ू जैसे चराग जल पड़े, अब तो वफा की राह में हम तेरे साथ चल पड़े, चाहे हंसाए जा हमें, चाहे हमें रुलाए जा, शोक नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, शोक नजर की बिजलियां। मंजिले इश्क दूर है, दूर बहुत ही दूर है, आ मेरा हाथ थाम ले, रूह थकन से चूर है, अपने जहां को छोड़कर मेरे जहां पे छाए जा, शोक नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर तू यूं ही मुस्कुराए जा, शोक नजर की बिजलियां। थैंक यू। हाजरीन, फिल्म वो कौन थी का एक आइकॉनिक गीत है, जिसकी बात नहीं की तो ये शाम अधूरी है। इस फिल्म के हीरो मनोज कुमार ने बताया कि म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन का उनके पास फ़ोन आया कि भाई साहब मैंने एक बेहद खूबसूरत गीत राज साहब को सुनाया पर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, अब आप ही आकर संभालो। मनोज कुमार ने आकर राज खोसला को कन्विंस किया कि इस गीत को ज़रा दोबारा सुन लीजिए। दोबारा सुनने पर राज साहब ने अपने ही जूते से अपना सिर पीट लिया कि जाने किस मूड में मैंने इस गाने को रिजेक्ट किया। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा गाना है? जी बिल्कुल, चलिए सुनते हैं। लग जा गले हंसी रात,
जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानते हैं झुमका गिरा रे गीत कहाँ से आया? राज खोसला की दादी के फोक सॉन्ग कलेक्शन से। उनकी दादी को ना गाने का बहुत शौक था। एक गीत जो वो अक्सर गुनगुनाया करती थी वो था झुमका गिरा रे। 1930 में इसे दुलारी बाई ने रिकॉर्ड किया था, 1947 में शमशाद बेगम ने, पर मेरा साया में जब ये साधना पर लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्माया गया तो इतिहास बन गया। वो सिर्फ एक रोमांटिक सॉन्ग नहीं था, राज खोसला की दादी का प्यार था। बिल्कुल सही कहा कनुप्रिया। राज खोसला की फिल्मों में इंटरेस्टिंग बात यह है कि संगीत चाहे जिस भी म्यूज़िक डायरेक्टर का हो, पर उनकी हर फिल्म में एक ना एक गीत लोक संगीत पर आधारित होता था।
जैसे झुमका गिरा रे, नजर लागी राजा, सुनाती हूँ आपको। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, बोले झुमका मैं पहना दूं आजा बाकी छोरी, मैं बोली ना 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 बाबा ना कर जोरा जोरी, लाख छुड़ाया सैया ने कलैया नहीं छोड़ी, हाय कलैया नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे हम दोनों के तकरार में, झुमका गिरा रे हम दोनों के तकरार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर, कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर, लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, आशा पारेख ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म दो बदन में आशा पारेख और मनोज कुमार दोनों के किरदारों को फिल्म के एंडिंग में मरना था। आशा को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उन्होंने राज खोसला से कहा कि फिल्म में तो मैं बीमार हूँ, मेरा मरना तो जायज़ है, पर मनोज कुमार के किरदार को क्यों मरवा रहे हैं। आशा के सामने तो उन्होंने उनकी बात मान ली, पर फिर किया वही जो उनको ठीक लगा। दोनों किरदार मर गए और बकौल आशा पारेख ये फिल्म हिट भी इसी वजह से हुई। अपनी ऑडियंस की भावनाओं की नब्ज़ को बखूबी समझते थे राज साहब। चलिए
इसी फिल्म से एक गीत सुनते हैं। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, एक सांस रह गई है वो भी न टूट जाए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो थरथरा रही है अब शम्मे जिंदगी की, उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमा है दो घड़ी की, उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमा है दो घड़ी की, मर कर ही अब मिलेंगे जी कर तो मिल न पाए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। थैंक यू। तो जनाब, एक बार राज खोसला देवानंद के साथ एक गीत पिक्चराइज कर रहे थे। राज साहब ने देवानंद से कहा, आप सिर्फ वॉक करेंगे, गाएंगे नहीं। थोड़ी देर देवानंद ने वॉक किया, पर उनको वॉक करते समय हाथों को एक पिक्यूलियर तरीके से हिलाने की आदत थी। राज साहब ने सख्त हिदायत दी, आप हाथ भी नहीं हिलाएंगे। देवानंद झुंझुला गए, मैं गा नहीं सकता, हाथ नहीं हिला सकता, तो क्या यूं ही मील दो मील मुझे चलवा दोगे? राज साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ, बस चलते जाना है और हैंडसम दिखना है। तो चलिए देवानंद पर ही फिल्माया 16वां साल का एक गीत सुनते हैं। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस
हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। क्या बात। ख़वातीनो हज़रात, मिस्ट्री गर्ल ट्रायोलॉजी के बाद राज साहब वॉज अ लिटिल टायर्ड ऑफ सस्पेंस जॉनर फिल्म्स। अब उन्होंने अपने दर्शकों के लिए डाइवर्स सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनाई, जिनमें दो रास्ते स्टैंड आउट करती है। दो रास्ते वो पहली फिल्म थी जिसे देखकर उनकी माँ की आंखों से आंसुओं का समंदर बह गया। लेकिन हाजरीन, शुरू में फिल्म दो रास्ते को अच्छी ओपनिंग नहीं मिली थी। राज परेशान थे। उन्होंने अपनी करीबी दोस्त साधना से सलाह ली और उन्हीं की सलाह पर दो रास्ते की एंडिंग को बदला गया और फिल्म एंड हुई बिंदिया चमकेगी गीत के साथ। सुना तो ये भी है कि उन्होंने बिंदिया चमकेगी गाने की कोरियोग्राफी भी खुद ही की थी। इनफैक्ट इस गाने में मुमताज़ और राजेश खन्ना ने मुमताज़ और राजेश खन्ना के शॉट्स को उन्होंने अलग अलग शूट किया और बाद में उन्हें ऐसा जोड़ा दैट द रिजल्ट वाज स्टनिंग। और इस गाने ने ऐसा कमाल दिखाया कि जिस फिल्म को शुरू में नकारा गया था, वही फिल्म ओपेरा हाउस थिएटर में 50 हफ्ते चली। इट वॉज अ माइलस्टोन फिल्म फॉर मैनी, जैसे राजेश खन्ना, मुमताज़, बिंदु, प्रेम चोपड़ा एंड महेश भट्ट। चलिए सुनते हैं। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े दे उड़ जाए, गजरा बहकेगा, गजरा महकेगा, गजरा बहकेगा, गजरा महकेगा, माही रुस जाए दे रुस जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। मैंने माना हुआ तो दीवाना, जुलम तेरे साथ हुआ। मैंने माना हो, मैंने माना हुआ तो दीवाना, जुलम तेरे साथ हुआ। मैं कहाँ ले जाऊं अपनी लौंग का लश्कारा, इस लश्कारे से आके द्वारे से, इस
लश्कारे से आके द्वारे से चल मुड़ जाए दे मुड़ जाए बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी बोले कंगना कैसी गाओ सजना जवानी पे जोर नहीं बोले कंगना हो बोले कंगना कैसी गाओ सजना जवानी पे जोर नहीं लाख मना कर ले दुनिया कहते हैं मेरे घुंघरू पायल बाजेगी गोरी नाचेगी पायल बाजेगी गोरी नाचेगी छत टूट दिए दे टूट जाए बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। थैंक यू। हाजरीन, राज खोसला की नज़र पारखी की नज़र थी। उन्होंने कई बड़े कलाकारों के करियर्स में खासा योगदान दिया था, जिनमें से एक हैं महेश भट्ट, जिन्हें फिल्म दो रास्ते में उन्होंने अपना असिस्टेंट बनाया। कहते हैं पहली बार जब महेश भट्ट राज खोसला से मिले तो राज ने उनसे पूछा, फिल्मों के बारे में क्या जानते हो? महेश ने जवाब दिया, कुछ नहीं सर। इस पर राज साहब का क्लासिक जवाब था, बहुत अच्छी बात है, जीरो से शुरू करना ही सबसे सही रास्ता है। ऐसे ही कास्टिंग भी राज साहब की खासियत थी। वो कास्टिंग हमेशा किरदार और कहानी की बारीकियां समझकर करते थे। फिर वो फिल्म वो कौन थी में रोमांटिक हीरो प्रेम चोपड़ा को विलन बनाकर सस्पेंस कायम रखना हो, या विनोद खन्ना को छोटे छोटे रोल से ऊपर उठाकर उन्हें फिल्म मेरा गांव मेरा देश में क्रूर डकैत जब्बर सिंह की भूमिका देना हो। हाजरीन, जब्बर सिंह इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना कि उसने हिट फिल्म शोले के गब्बर सिंह की नींव रखी। मेरा गांव मेरा देश फिल्म में एक सिचुएशनल सॉन्ग की ज़रूरत थी, जिसमें जब्बर की साथी मुन्नी कैदियों के साथ हमदर्दी जताती है। गीतकार आनंद बख्शी को सीन समझाया गया। बख्शी बोले, ये तो सिकंदर पोरस जैसी सिचुएशन है। तुरंत गाना लिखा गया। यहाँ गाना लिखा और वहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बस 2 मिनट में गाना कंपोज भी कर दिया। जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। शाम दिया जाए के जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए।
कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपनी जुल्फें भी मैंने तो बिखराई। कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपनी जुल्फें भी मैंने तो बिखराई। तुझको जंजीरें हाँ जंजीरें तुझको हाँ तुझको जंजीरें लेकिन पसंद आई। कैद किया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बहुत शुक्रिया। हाजरीन, मैं तुलसी तेरे आंगन की राज खोसला के करियर की आखिरी सफल और पॉपुलर फिल्म रही। ये एक मेलोड्रामा फिल्म थी जहां दो औरतों के बीच ईर्ष्या नहीं, त्याग और मर्यादा का रिश्ता था। ये फिल्म राज साहब के लिए उनके अपने जज्बात का आईना थी। फिल्म के टाइटल सॉन्ग की पहली पंक्ति और उसकी बेसिक धुन तैयार थी। मुखड़े की दूसरी लाइन और पूरे गीत के लिए राज साहब और लक्ष्मीकांत पहुँचे आनंद बख्शी के पास, जो पैर में फ्रैक्चर के कारण घर पर आराम कर रहे थे। फिल्म का नरेशन देकर राज साहब ने कहा, भाई बख्शी, मुखड़ा पूरा करने के लिए दूसरी लाइन की ज़रूरत है। बख्शी ने तुरंत कहा, इसकी दूसरी लाइन होनी चाहिए, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। राज साहब बेहद भावुक हो गए, उनके आंसू निकल पड़े। बख्शी साहब ने रोज़मर्रा के केवल 6 शब्दों में उनकी फिल्म की पूरी कहानी मानो समेट दी थी। चलिए आप भी सुनिए। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। मांग तेरी सिंदूर भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। मांग तेरी सिंदूर भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। मोहे सौगंध तेरे आंसुअन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की,
मैं तुलसी। काहे को तो मुझसे जलती है, तेरी मोहे तो तू लगती है। काहे को तो मुझसे जलती है, तेरी मोहे तो तू लगती है। कोई सहेली बचपन की मैं तुलसी, तेरे आंगन की मैं तुलसी, तेरे आंगन की। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजरीन, फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए राज खोसला को 20 साल के लंबे इंतज़ार के बाद फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। साल 1978 उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। एक तरफ तो ये बड़ी जीत और दूसरी तरफ एक पिता का फ़र्ज़ निभाते हुए उन्होंने अपनी बेटियों उमा और सुनीता का घर बसाया। वक्त अच्छा चल रहा था। राज साहब खुश थे। ही वॉज लिविंग हिज लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स। पर वक्त एक समान नहीं होता। ख़वातीनो हजरात, 60 से 70 के दशक में राज खोसला सफलता के शिखर पर थे। पर वक्त बदला, नए सितारे आए, नई कहानियाँ आईं। 1980 के बाद राज खोसला की निजी जिंदगी और करियर में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। फिल्म इंडस्ट्री के नए तौर तरीक़ों से वो बेजार से होने लगे। आखिरी दिनों में अकेलापन और गिरती तबीयत के चलते उन्होंने भी अपने मेंटोर गुरुदत्त की तरह शराब का सहारा लिया। करीब 27 फिल्में और अनगिनत यादें देकर 9 जून 1991 को वो खामोशी से चले गए। 2013 में भारत सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को दिए उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उनके सम्मान में एक खास पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज़ किया। किसी ने बहुत सही कहा है, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। कुछ फिल्मकार कहानियाँ सुनाते हैं और कुछ फिल्मकार एहसास रचते हैं। राज खोसला ने न सिर्फ फिल्में दी बल्कि एक ख़ास एहसास, एक ख़ास माहौल दिया। कभी रहस्य की धुंध, कभी प्रेम में खुशी और गम के उतार चढ़ाव, और कभी रिश्तों की गहरी मर्यादा। उनकी फिल्मों में गीत कहानी भी कहते थे और खामोशी भी। और आखिर में वो खामोश रहे तो भी फसाना बोल उठा। वो खामोश रहे तो भी फसाना बोल उठा। हर एक मंज़र में उनका तराना बोल उठा। न थे वो गायक मगर ये करिश्मा देखिए, न थे वो गायक मगर ये करिश्मा देखिए। जहाँ भी दिल धड़का उनका गाना बोल उठा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया।
आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much for being here and joining us. I would like to thank Kanupriya for her spirited storytelling. Thanks to Satish for always being there for me and organizing the whole music band for me. Thanks to all the amazing band members, Vikas on keyboard, Ram on octopad, Sonu on dholak, Satyam on guitar, and Satish on percussion. And thank you for the wonderful sound which was done by my son-in-law who's come all the way from Mumbai to do the sound balancing. It was awesome. Thank you so much. Good night and God bless. बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए. आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. आंखों में इशारा हो गया. अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना. देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना. अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना. देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना. देखने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है भभूत. न जाने किस पे आएगा. कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना. जीने दो जालिम, बनाओ ना दीवाना. यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा. आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा. ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा. पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर. लेके पहला पहला प्यार, दिल है मुश्किल जीना यहाँ. जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई. जो मैं होती राजा बन के कोयलिया, जो मैं होती राजा बन के कोयलिया, कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर. कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर. नजर लागी राजा तोरे बंगले पर. आपका मुस्कुराना मुझे देख कर, आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है. लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में
खुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। साथी न कोई मंजिल दिया है न कोई महफिल, चला मुझे लेके ऐ दिल अकेला कहाँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ। का गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका, गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका, गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय हाय हाय। बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े उड़ जाए। रेशमी जुल्फें ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।